Hello students, today will we discuss about कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। आज हमारा टॉपिक है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। पिछले उसमें हमने वर्ड टेस्ट कॉमेडी और उसके टाइप्स के बारे में वर्णन किया था। आज हम उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होता क्या है। ओके, व्हाट करेक्टराइज द ईयर immediately following the period of Shakespeare's is the determined effort on the part of energy young men to use the anti-romantic method with the object of presenting social criticism, generally satiric in spirit. In the development of the new form of comedy, one man, Ben Jonson, stands out preeminent. The types of comedies which he wrote came to be known as the comedy of humor. Ben Jonson was interested immensely in the revival of comedy and in the giving it a new lease of life on new principles and new grounds. When Jonson stands out preeminent, when Jonson gave serious thought to comedy and sought to restore to it its pride of place which it enjoyed in the days of Aristophanes in Greece. He was the only dramatist among Elizabethan who was eminently suited for the task of reorientating comedy. देखिए, कॉमेडी और जो ह्यूमर्स है वो शेक्सपियर के तुरंत बाद के वर्षों की विशेषता है। ये क्रोधी युवक ने एंटी रोमांटिक विधि का प्रयोग करने का दृढ़ प्रयास किया था। उसका उद्देश्य सामाजिक आलोचना प्रस्तुत करना था और उसकी आत्मा या भावना सामान्यतः व्यंग्यात्मक थी। कॉमेडी के इस नए रूप के विकास में एक ही व्यक्ति प्रमुखता के साथ अलग खड़ा दिखाई देता है और उसका नाम है बेन जॉनसन। जो कॉमेडी उसने लिखी है उसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। बेन जॉनसन की अत्यधिक रुचि कॉमेडी को पुनर्जीवित सिद्धांतों एवं ग्राउंड्स के आधार पर उसको एक नया जीवन देने की थी। जब बेन जॉनसन ने अपना नाटकीय कैरियर नाटक लेखक के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया तो उसने कॉमेडी को पूर्णतया अपेक्षित अवस्था में पाया, क्योंकि इसको नाटकीय उत्पादन में सम्मानजनक दिलाने के विषय में वह सोचता भी तक नहीं था। कॉमेडी ने इसकी पूर्ण बहन ट्रेजिडी के हित में बलिदान किया था। बेन जॉनसन ने कॉमेडी के विषय में गंभीरतापूर्वक सोचा और ये प्रयास किया कि इसको ये महत्वपूर्ण स्थान दिलाया जाए जो उसका स्थान ग्रीस में अरिस्टोफेनेस के समय में था। Okay. Obviously, Johnson and thoroughly opposed to romantic and historical chronicles, objecting to these on two grounds. First, because they were what we modern would call, and secondly, because they lacked classically precise form and indulged in cheap theatrical effects. He sought to correct faults by reverting to the tightly wrought pattern of Latin drama and by making his comedies comment upon the errors of his age in order to carry out his purpose. He adopted a special approach in his presentation of characters. The word humor appeared the title of his first play, and familiarly his form of comedy is called the comedy of humors. To appreciate the significance of the term, we must turn to the widely prevailing contemporary medical belief that in men there were four basic humorous postures in the well-balanced individual. These humors existed in due proportions so that an even harmony ensued. But in many men, one humor or two humors in conjunction attained such force as to destroy the operation of the others. The result leading
Towards disease, the medical concept Johnson applies to characters, and once more he himself was sufficiently explained his objectives. देखिए, बेन जॉनसन एक ऐसा नाटककार था जो कॉमेडी को उसका उपयुक्त स्थान दिलाने में पूर्णतया सक्षम था। किसी भी अर्थों में बेन जॉनसन के नाटक में रूप में वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता इनकी एवरीमैन इन ह्यूमर का प्रथम रूप इटालियन पृष्ठभूमि में है। वे सभी भावनाएं आत्मा से अनुप्राणित थे और सामान्यतः उन सब में एक ही विधि का प्रयोग किया गया। आधारभूत रूप से उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उसके प्रथम नाटक के प्रलोग से किया गया है। उसमें वह विरोध प्रकट करता है, यद्यपि वह श्रोताओं का अनुमोदन चाहता है। अपने पूर्ववर्ती समकालीन रोमांटिक लेखकों की सेवा या अनुसरण अपनी अखंडता सत्यनिष्ठा का बलिदान करके नहीं कर सकता। बेन जॉनसन रोमांटिक कॉमेडी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स का घोर विरोधी था। उन पर दो बुनियाद पर आपत्ति करता था। प्रथम पलायनवादी थे, हम आधुनिक लोग कहते हैं। द्वितीय, उनमें क्लासिकल संक्षिप्त रूप की कमी भी थी। वो नाटकीय प्रभावों में उलझे हुए थे। ये कसे हुए लैटिन नाटक को पुनर्जीवित कर इन खराबियों को वह ठीक भी करना चाहता था। वह अपनी कॉमेडीज के द्वारा अपने युग की त्रुटियों पर टिप्पणी भी करना चाहता था। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने चरित्रों की प्रस्तुति का विशिष्ट अप्रोच अपनाया। शब्द ह्यूमर उनके प्रथम नाटक के शीर्षक में प्रकट हुआ और उसकी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहलाई। इस शब्द के महत्व की प्रशंसा करने के लिए हमें उस समय के समकालीन प्रचलित चिकित्सीय विश्वास की ओर ध्यान देना चाहिए। वह ये कि मनुष्य में 4 आधारभूत ह्यूमर्स या मॉइस्चर्स आर्द्रताएं होती थीं। संतुलित व्यक्ति में वह आर्द्रताएं उचित अनुपात में होती थीं। ये समान समरसता निश्चित रहती थी, परंतु बहुत से व्यक्तियों में ऐसा भी होता था कि 1 या 2 ह्यूमर्स की इतनी अधिकता हो जाती थी कि वे अन्य के कार्य को भी नष्ट कर देते थे। इसका परिणाम किसी बीमारी के रूप में निकलता था। इस चिकित्सीय धारणा को जॉनसन चरित्रों पर लागू करता है और पुनः अपने उद्देश्य की व्याख्या भी करता है। वो ओके नेक्स्ट, इन बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स द मेन एम्फेसिस इज ऑन एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल्स व्यूज or folly or imbalance resulting what of imbalance in the proportions of humors in him. According to Ben Jonson, imperfection of men's characters are the groundwork of comedy. Besides, Ben Jonson's theory of comedy, as illustrated in his comedy of humors, laid down that comedy ought to be judicial. It should treat real life in the spirit of satire so that in reform may be introduced in the condition of social life. Okay, Ben Jonson thus advocated realism and satire in his theory of comedy. From the foregoing remarks, it becomes clear that in Ben Jonson's theory of comedy, there is little scope for pure laughter in comedy. The comedy writer aimed to teach was the motto of Ben Jonson, and delight like produced by the tragedy writer and mere production of horse laughter was no part of his art. In the words of Thorndike, instead of lawless and fantastic translations from romance and history, Ben Jonson's planned comedy based on rational and ordered study of life, his own time, instead of haphazard selection of story, scene and person. समाज के व्यंग्यात्मक चित्र को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जॉनसन ने घोषणा की कि वह मंच पर व्यक्ति विशेष को प्रस्तुत नहीं करेगा, वरन टाइप्स लोग प्रस्तुत करेगा। जांचा परखा और वृद्ध पिता, चिड़चिड़ा, कंजूस, अत्यधिक डींगे मारने वाला सैनिक, ईर्ष्यालु पति, इस टाइप्स के वो कैरेक्टर्स को रखेगा। इस प्रकार बेन जॉनसन ने एक नए प्रकार की कॉमेडी का निर्माण किया जिसमें उसकी अपनी विधि, अपना क्षेत्र और अपने एम्स थे। क्योंकि कॉमेडी जो है अपने स्वभाव से ही आलोचनात्मक होती है और स्वयं बेन जॉनसन भी उच्च श्रेणी का आलोचक था, अतः दोनों में प्रसन्नतापूर्ण मिलन हो गया और बेन जॉनसन उस कॉमेडी का नेता और संस्थापक बन गया।
जिसको हम कॉमेडी में ह्यूमर्स के नाम से जानते हैं। बेन जॉनसन की कॉमेडी जो थी पूर्ण रूप से व्यंग्यात्मक थी। इसका उद्देश्य अपने समय की मूर्खताओं एवं कमजोरियों को भी उजागर करना था। वह अपनी युग की स्थिति में सुधार लागू करना चाहता था और बेन जॉनसन ने अपनी कॉमेडी के माध्यम से कई सारे सुधार भी किए। बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में मुख्य बल व्यक्तिगत बुराइयां, निर्बलताएं, असंतुलन को उजागर करने पर था, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के ह्यूमर्स के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता था। बेन जॉनसन के अनुसार मनुष्य के चरित्र में अपूर्णता कॉमेडी के लिए बुनियाद का कार्य करती हैं। इसकी बेन जॉनसन का कॉमेडी का सिद्धांत जैसे कॉमेडी एवरी मैन इज ह्यूमर में दर्शाया गया है कि कॉमेडी को कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। इसकी व्यंग्य की भावना के साथ वास्तविक जीवन को दर्शाना चाहिए ताकि सामाजिक जीवन की जीवन स्थिति में सुधार लागू किया जा सके। इस प्रकार बेन जॉनसन ने अपने कॉमेडी के सिद्धांत में वास्तविकता में व्यंग्य की वकालत की है। पूर्व में की गई टिप्पणी से बात स्पष्ट है कि बेन जॉनसन के कॉमेडी के सिद्धांत में शुद्ध हंसी का कॉमेडी में कोई प्रावधान नहीं है। बेन जॉनसन का उद्देश्य था कि कॉमेडी लेखक को कुछ सिखाना चाहिए और उसे प्रसन्न भी करना चाहिए। ओके, थॉर्नडाइक ने भी कहा है कि रोमांस तथा इतिहास नियम विहीन असाधारण अनुवादों के बजाय बेन जॉनसन ने कॉमेडी जीवन के तर्कसंगत एवं व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित करने की योजना बनाई। उसने कहानी, दृश्यों, व्यक्तियों को बिना किसी योजना के चुनाव करने के स्थान पर भी कॉमेडी को सावधानी पूर्वक रचित कथानक पर आधारित करने का प्रस्ताव किया।